Hello everyone. Today we will discuss about the systems of drug measurements. Okay. So there are various systems of drug measurements. In this class we will discuss about that. We will discuss one by one. There are so many and different systems available are here. The first one is metric system, and the second one is household system, and the third one is apothecary systems, and the next is solutions. Okay. In the first one is metric system. Metric system is mostly widely used systems of मेज़रमेंट. ओके. तो ये आपका क्या है, जो आपका मैट्रिक सिस्टम है, ये मोस्टली क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन सिस्टम्स है आपका मेज़रमेंट का यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस. ओके. सो अ डेसिमल सिस्टम बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10. ओके. इसमें क्या होता है, आपका जो डेसिबल होता है वो किसका होता है, पावर ऑफ 10. इसमें हम क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. इसकी सम यूनिट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, ग्राम फॉर वेट. ओके. एंड लीटर फॉर वॉल्यूम एंड मीटर फॉर लेंथ. Okay, these are the common prefixes which are used in metric system. And this you can see in pictures. 1 gram about the mass of a large thumb tack. ओके. सो ये जितने भी सिस्टम्स है, मोस्टली ये वाले जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है, ये हमारा क्या होता है, मोस्टली यूज्ड होता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज apothecary system. Apothecary is it is the one of the ancient form of the measurement system used in a medicines and science field. Okay. This system of measurement is not as accurate as the metric system. Clear? For this reason, it is the highly discouraged to use in a pharmaceutical industry. Okay. For example, 1 gram equal to 64,579 milligram, but in most presentation this figure will appear as 64.8 or even 65. तो इसलिए ये क्या है, आपका मीन्स एक्यूरेट नहीं आ पाती है यहाँ पे सिस्टम. एंड इट इज़ ऑल्सो ओल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. क्लियर? द नेक्स्ट इज household system. The household system not as accurate as a metric system due to the lack of standardization of spoon, cups and glasses, because these systems are standard in the United States in the sale of products such as the food items. Okay. तो ये क्या, तो इसलिए ये क्या होता है, it has been replaced by the metric system however in some country. इसमें क्या, जैसे 1 टीस्पून, जैसे कुछ हम क्या देते हैं हाउस होल्ड, मतलब जैसे हमने 1 टेबल स्पून मेडिसिन देनी है पेशेंट को. ओके. तो फॉर एग्जांपल मैट्रिक सिस्टम 1 ml in household system, that is 15 drop. Okay. In 5 ml 1 teaspoon and 15 ml is 1 tablespoon. ओके. देर आर डिफरेंस बिटवीन टीस्पून और टेबल स्पून. टीस्पून मतलब क्या होता है आपका कम अमाउंट में, टेबल स्पून अमाउंट आपको पता है ज़्यादा अमाउंट में. आपको सपोज जैसे आप एक स्मॉल स्पून लोगे और एक लार्ज स्पून लोगे, तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे, स्मॉल अमाउंट को टी स्पून में, एंड जो हमारी ज़्यादा अमाउंट होगी दैट इज़ टेबल स्पून. क्लियर? सो हियर इज सम एग्जांपल. 1 mg equal to 1.6 gram in apothecary system. Okay. So these are some example. 5 ml is 1 flugram, 4 L is 1 gallon, 1 liter is 1 quart. And the next is solution.
A solution is a given mass of solid substance dissolved in a known volume of fluid or given volume of liquid dissolved in a known volume of another fluid. For example, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 10% solution is 10 gram of solid dissolved in 100 ml of solution. Clear? There are some converting measurements unit. The first one is conversion within one system, and the second one is conversion between system, and the third one is dosage calculation. Okay, so first one is conversion within one system. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं मेजरमेंट को विद इन वन सिस्टम, सिंपली डिवाइडेड और मल्टीप्लाई. ओके, हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टी. जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे, टू चेंज मिलीग्राम टू ग्राम. अगर आपको मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, मूविंग द डेसिमल 3 पॉइंट्स टू द लेफ्ट. क्लियर? यहाँ पे जैसे आपका 1000 mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 ग्राम. तो जो आपकी ये 3 पॉइंट्स है वो क्या हो गया, आपके लेफ्ट हो गए, क्योंकि मिलीग्राम किस में चेंज हो गया, आपका ग्राम में चेंज हो गया है. तो उसका आप क्या करोगे, डिवाइड. देन सेम हेयर 350 mg इक्वल्स टू 0.35 ग्राम. तो ये कहाँ कैसा हो रहा है आपका, कन्वर्सेशन विद इन वन सिस्टम. Okay, and the next is conversion between the system. The convert measurement from one system to another system, and the nurse should be familiar with the equivalent values of all the system. For example, suppose 1 ml metric में है, एपैथोगैरिज में कहते हैं 15 मिनट, और इसमें हाउस होल्ड में क्या हो जाएगा आपका 15 ड्रॉप्स. ओके, एंड फॉर यहाँ पे जैसे आपका क्या है 5 ml किसके इक्वल्स टू है आपके 1 फ्लूइड ग्राम, और हाउस होल्ड में अगर हम मेज़र करेंगे तो 1 टीस्पून फुल. ओके, सो देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक, एपैथोगैरी एंड हाउस होल्ड methods. You can see in this pictures. And the next is, there is some general methods for drug calculation. This is very important, and there are so many general methods for drug calculation. Like first one is basic formula, and the next one is ratio and proportion, and the third one is fractional equation, and the fourth one is body weight, and the fifth one is body surface area. So we will discuss one by one. The first is basic formula. Okay, basic formula, suppose आपका क्या है, D into V equals to A. Okay, तो D क्या है आपकी, डिज़ायर्ड डोज. डिज़ायर्ड डोज मतलब सपोज पेशेंट को कितना mg देना है, हमें 250 mg देना है. दैट इज़ योर डिज़ायर्ड डोज, जो आपको डॉक्टर ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब्ड किया है. H इज़ ऑन हैंड, मतलब आपको डॉक्टर ने कितना दिया है, 250 mg आपको क्या करना है, पेशेंट को देना है. लेकिन आपके हैंड में कितना है, आपके पास स्टॉक ऑन हैंड ऑन लेबल और कंटेनर, दैट इज़ सपोज 500 mg. ओके, and V is vehicle, quantity drug from in which drug comes, and A is amount calculated to be given to client. This is the basic formula to drug calculate. Okay, example देखो यहाँ पे आपका ऑर्डर डोज कितनी है आपकी, एवेंडा 2 mg OD, हाउ मच टैबलेट विल यू गिव. एग्जाम्पल D इंटू V इक्वल्स टू A. तो सोल्यूशन कितना है आपके पास, 2 mg कितना है आपको, ऑर्डर डोज है जो डॉक्टर ने दिया है. ओके, अपॉन डोज इन हैंड, तो डोज इन हैंड कितना है आपके पास, दिख रहा है यहाँ पे 4 mg इंटू 1 टैबलेट. तो आपको कितनी देनी है, 0.5 टैबलेट कितनी देनी है आपको, पेशेंट को देनी है. क्लियर? मीन्स डिज़ायर्ड डोज H इज ऑन हैंड कितना है आपके पास. ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इंटू A क्या है आपका, अमाउंट कैलकुलेटेड टू बी गिवन टू द क्लाइंट.
ओके, कितनी अमाउंट आपकी आई है आप इंटू ए आपका क्या आएगा, जो आपकी अमाउंट कैलकुलेट करके आई है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल सेम, पैरासीटामोल 500 mg आपको 4 आवर राउंड द क्लॉक, सो द स्टॉक ऑन हैंड इज 250 mg अपॉन पर ml इन द 60 ml बॉटल, सो हाउ मेनी ml शुड बी एडमिनिस्टर्ड। तो सेम कितना देना है आपको, 500 mg क्या है आपकी प्रिस्क्राइब्ड है, और हैंड में नहीं, ठीक है। तो 250 mg इंटू 5 ml कितना आ गया आपका 10 ml। 5 ml क्या है आपका हैंड, मीन्स कितने ml में वो क्या है डिजॉल्व। ओके, द नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, द H टू V इक्वल्स टू D रेशियो X, जो आपकी वैल्यू आएगी। सो H इज ड्रग ऑन हैंड, सेम। V इज ड्रग फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आपका, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, आपका लिक्विड फॉर्म में है। ओके, एंड D इज डिजायर डोज, जो विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, एंड X इज अननोन अमाउंट टू गिव। समझ में आ रहा है आपका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे, H रेशियो V इक्वल्स टू D रेशियो X, जो आपका अननोन अमाउंट आ जाएगा आपका गिव पे। ओके, वेयर द H इज ड्रग ऑन हैंड, जितना आपके पास क्या है अवेलेबल है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 73 थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन 100 mg पर ओरल QID हमें पेशेंट को देना है। तो हाउ मेनी ml शुड बी क्लाइंट रिसीव। ऑर्डर डोज आपका कितना है 100 mg, और इसमें कितना है आपका जो हैंड में आपके 250 mg। तो यहाँ पे देखो आप कितना है 250 mg रेशियो 5 ml इक्वल्स टू 100 mg रेशियो, जो आपका देखो थर्ड जनरेशन QID हाउ मेनी ml शुड द गिवन। तो आपको सेम यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या करना है, पुट करना है। ओके, मीन्स आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको डॉक्टर ने कितना ऑर्डर दिया है। मीन्स आपने देखे होंगे बहुत सारे इंजेक्शन, कोई 1000 ml के होते हैं, कोई 50 mg के होते हैं, कोई 500 mg के होते हैं, कोई 80 mg का होता है, 100 mg के होते हैं। तो हमें वो सारा क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना है। एज इट इज़ वही डोज आप पेशेंट को नहीं दोगे, नो। तो आपको ऑर्डर डोज जितनी आएगी, और डोज आपके हैंड में कितनी, हैंड में का मतलब यहाँ पे ये है कि मीन्स जो आपका सॉल्यूशन है, मीन्स जो ड्रग है वो कितने mg और कितने ml की है, जो भी है। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल इक्वेशन, सेम एज R&P एक्सेप्ट इट इज़ अ रिटन एज अ फ्रैक्शन। तो सेम है यहाँ पर आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H अपॉन V इक्वल्स टू D अपॉन X। H क्या था आपका डोज इन हैंड, V आपका कौन से सॉल्यूशन उसमें फॉर्म में है। ओके, डोज एंड X जो आपका अमाउंट आएगा। ओके, सो ऑर्डर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 500 mg पर ओरल 12th आवर देना है आपको। ओके, सो हाउ मेनी टैबलेट शुड बी क्लाइंट रिसीव। तो सेम आपको डोज इन हैंड कितना है आपका 750 mg, देनी कितनी है आपको 500 mg। V सोल्यूशन की जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका कितने ml, सपोज पर ml 5 ml में है, और X आपका जो आपको पेशेंट को देना है। ओके, तो देखो यहाँ पे H आपके पास कितनी थी 750 mg, जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको बताया ये कितने जो आपके हैंड में 750 mg, एंड ओके V एक टैबलेट है, ये टैबलेट फॉर्म में है ना आपका। ओके, तो दैट इज़ 1 इक्वल्स टू 500 mg। 500 mg क्या है, जो आपको ऑर्डर डोज है। ओके, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन, X आपका क्या आएगा जो पेशेंट को आपको देनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको 0.67 टैबलेट आपको क्या देनी है, पेशेंट को देनी है। यहाँ पे क्या आएगा अपॉन X। ओके, 500 mg 10 mg देन अपॉन, क्लियर। तो 0.67 टैबलेट आपको क्या देनी है, पेशेंट को देनी है। X क्लियर हो गया आपका। V जो आपकी फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या आपका टैबलेट फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 टैबलेट। क्लियर।
The next is 4 is body weight. So allow individualization of the drug doses involved in 3 steps. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अगर बॉडी वेट का निकाल रहे हो, कन्वर्ट पाउंड टू केजी. ओके, तो पाउंड्स को आप केजी में कैसे चेंज करोगे, तो 1 kg इक्वल्स टू 2.2 LBS होता है आपका. ओके, देन सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, पहले तो आप कन्वर्ट करोगे पाउंड्स को केजी में, देन डिटरमाइन ड्रग डोजेस पर बॉडी वेट. देन क्या करोगे आप, ड्रग डोज इनटू बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है इक्वल्स टू क्लाइंट डोज पर डे. ओके, मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि आपको मीन्स डिफरेंट पेशेंट का क्या होता है, डिफरेंट वेट होता है. जैसे पीडिया पेशेंट्स का वेट कम होगा, थिन ओबीज पेशेंट का, तो अकॉर्डिंग टू वेट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले चेंज करेंगे, देन हम डिटरमाइन द ड्रग डोज पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे. ओके, सो ड्रग डोज इनटू बॉडी वेट इक्वल्स टू क्राइंट डोज पर डे. एंड देन हम क्या करेंगे, फॉलो द बेसिक फॉर्मूला आर एन पी प्रोपोर्शनल. ओके, क्लियर हो गया आपका. एंड फॉर एग्जाम्पल Fluoroquine 15 mg per kg per day IV not to exceed 800 mg per day. एंड द अडल्ट वेट कितना है आपका, अगर आपका LB में दे रखा है तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में चेंज करना पड़ेगा. वेट कितना है 132. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेट को चेंज करोगे, तो कन्वर्ट पाउंड्स टू केजी डिवाइडेड बाई 2.2 दैट इज 60 kg. ओके, द नेक्स्ट इज योर mg इंटू के जी इक्वल्स टू क्लाइंट डोज. ओके, तो ये कितना था अब आपका 12 mg इंटू 60 kg, जितना पेशेंट का वेट है, तो कितना आ जाएगा आपका 720 mg पर kg पर डे. क्लियर. तो कितना देना है आपको, फ्लूरोक्विन की कितनी डोज देनी है आपको, 720 mg पर kg पर डे. क्लियर. The next is body surface area. The most accurate to calculate drug doses for infant, children, older adults, clients who are on anti-neoplastic agents and low body weight in meter square determine where the person's height and weight interact the nomogram scale. So to calculate the drug doses using these methods, multiply the drug doses by of square meters. Example, okay, cyclophosphamide और इसका आपका 100 ऑर्डर है, आपका 100 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे अवेलेबल है आपका डोजेज इन 200 mg में. और क्लाइंट्स की हाइट कितनी है आपकी 70 इंचेस एंड वेट कितना है आपका 160 LBS. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 17 इंचेस एंड 160 LBS इंटरैक्ट द नोमोग्राम स्केल एट 1.7 मीटर स्क्वायर. इसका एक स्केल होता है. ओके, सो 100 mg इंटू दैट इज़ 175 mg. तो हमें कितनी एडमिनिस्ट्रेट करनी है पेशेंट को, साइक्लोफॉस्फामाइड 197 mg पर डे. Okay, so the doctor has ordered an antibiotic whose average adult dose is 250 mg per day. So what would be the doses for the medications be on a child who has a length of 120 centimeter and weight of 40 kg. तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर and average adult dose in mg and upon 1.73. ओके, तो कितना था आपका एरिया 1.2 मीटर स्क्वायर इंटू 250 mg पर डे अपॉन, तो कितना देना है आपको 173 mg ऑफ मेडिकेशन वुड बी गिवन टू द पेशेंट. The next is pediatric consideration. There are some formula for pediatric dose calculation. The first formula is Fried rule. Okay, so applies to the child younger than 1 years of age. ये किसके लिए अप्लाई होता है, जो 1 साल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं. तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला, इन्फेंट एज इन मंथ. सपोज बच्चा क्या है 8 मंथ का है, 7 मंथ का है, 6 मंथ का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फेंट एज एंड इनटू
adult average dose अपॉन डिवाइडेड बाय 150 मंथ. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमें देनी है 250 mg डोज देनी है. तो अगर बच्चा मंथ में है, मीन 1 साल से छोटा है, तो हम फ्राइड रूल उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो इन्फेंट एज अपॉन, सपोज पेशेंट की बच्चे की उम्र क्या है, 8 महीने, तो हम क्या करेंगे 8 मंथ इंटू 250 mg डोज, सपोज बता रही हूँ, अगर 250 mg डोज है अपॉन 150 m, तो जितनी हमारी कैलकुलेट करके आएगी उतना हम क्या करेंगे, पेशेंट को, बच्चे को क्या करेंगे, डोज प्रोवाइड करेंगे. ओके. देन द नेक्स्ट इज यंग रूल. ये कौन सा रूल था आपका, फ्राइड रूल्स. एंड द नेक्स्ट इज यंग रूल. ये किसके लिए अप्लाई होता है आपका, अप्लाई टू चिल्ड्रन 1 to 12 years ओल्ड. ओके. वो कितने का था, यंगर देन 1 year. तो इसमें क्या आ जाएगा, आपकी चाइल्ड एज, जितने साल का बच्चा होगा, 10 साल का है, 15 साल का है, सॉरी ये 12 साल तक के लिए यूज़ होता है, 6 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, अपॉन चाइल्ड एज ईयर्स प्लस 12. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 करेंगे एंड इंटू एडल्ट एवरेज डोज. क्लियर. दैट इज यंग फॉर्मूला. एंड द नेक्स्ट इज क्लार्क रूल्स. ये सारी चिल्ड्रंस के लिए यूज़ होते हैं. यूज द चाइल्ड्स वेज टू calculate the appropriate dose and assumes that the adult dose is based on 150 lb person. ओके. तो सबसे पहले चाइल्ड वेट पाउंड्स में, अगर पाउंड्स में है तो आप क्या करोगे, इनटू एडल्ट एवरेज डोज, जितनी डोज हो गया आपके, एंड डिवाइडेड बाय 150 lbs इन पाउंड्स. यहाँ पे पाउंड्स में क्या करेंगे हम, दैट इज़ द क्लार्क फॉर्मूला. क्लियर हो गया आपका. यंग फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला, यंग फॉर्मूला एंड क्लार्क फॉर्मूला. दीज आर द फॉर्मूला फॉर चिल्ड्रन ड्रग कैलकुलेशंस. ओके. द नेक्स्ट इज आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड्स. अब तक हमने पढ़ा कि जो आपकी ड्रग्स होती है उनको कैसे कैलकुलेट करना है. अब हम पढ़ेंगे इंट्रावीनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो देयर इज 3 डिफरेंट मेथड्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. जो फर्स्ट मेथड है आपका, सो कैलकुलेशन ऑफ इंट्रावीनस मेथड इज 3 स्टेप. ओके. तो स्टेप 1 इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने आवर्स में आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है. ओके. इक्वल्स टू ml पर. सपोज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, 500 ml है, और आपको कितने उसमें देना है, 5 आवर में देना है. ठीक है. तो डिवाइडेड बाय 5 ml, तो आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना है 500 अपॉन 5 ml. तो आपको 100 ml पर आवर कितना देना है, पेशेंट को देना. ये दैट इज़ फर्स्ट स्टेप. एंड द सेकंड इज ml पर आवर अपॉन 60 मिनट्स. ओके. कितने ml पर आवर जो आपका निकला. एंड द थर्ड इज ml पर मिनट इंटू GTT ml इक्वल्स टू GTT पर मिनट, जितना आपको पेशेंट को देना है. एंड द थर्ड इज मेथड्स टू स्टेप, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, एंड आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने आवर्स में आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है फ्लूइड को, जो भी आपका कैलकुलेशन करके आएगा. एंड द सेकेंड स्टेप इज ml पर आवर इन ड्रॉप्स पर ml, 60 ml ड्रॉप फैक्टर. ठीक है. कितने मिनट में आपका जाएगा फ्लूइड. तो ml पर आवर, जितने ml पर आवर में, जब 60 ml पर आवर देना है हमें. ओके. ड्रॉप पर ml, 60 ड्रॉप पर ml देना है, 45 ड्रॉप पर ml देना है. 60 मिनट्स इंटू 60 ड्रॉप फैक्टर्स आपके क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे. ओके. एंड द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड्स, अमाउंट फ्लूइड सेम है यहाँ पे, आवर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनट पर आवर. ओके. तो ड्रॉप फैक्टर होते हैं आपके मैक्रो ड्रिप और माइक्रो ड्रिप. ओके. तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लूइड्स इंटू ड्रॉप फैक्टर्स और नंबर ऑफ आवर्स इंटू 60. क्लियर. माइक्रो और मैक्रो में, अगर आप अडल्ट के लिए कर रहे हो तो कितने में करोगे, माइक्रो में, नहीं चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हो माइक्रो और मैक्रो. सो नंबर ऑफ फ्लूइड्स जितना है आपका, तो ड्रॉप फैक्टर होगा आपका 60. नंबर ऑफ आवर्स, सपोज आपका 8 आवर्स में जाना है
3 आवर्स में जाना है इंटू 60 जो भी आपका कैलकुलेट करके। तो अगर आपको नंबर ऑफ ड्रॉप पर मिनट निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर आपको नंबर ऑफ आवर्स निकालना है तो नंबर ऑफ फ्लूइड्स इंटू ड्रॉप फैक्टर एंड नंबर ऑफ ड्रॉप पर मिनट इंटू 60. ओके, दैट इज माइक्रो ड्रिप एग्जाम्पल एंड दिस इज मैक्रो. मैक्रो क्या होता है आपका? माइक्रो छोटा. एग्जाम्पल नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लूइड्स इंटू ड्रॉप फैक्टर. ओके, अगर आपको D5 देना 1 लीटर फॉर 12 आवर्स एंड आपका ड्रॉप फैक्टर क्या है 15, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1000, 1 लीटर कितना 1000 इंटू 15 ml. ओके, अपॉन 12 आवर में देना है इंटू 60, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 20 ड्रॉप पर मिनट किसको देनी है? आपको पेशेंट को देनी है. तो आप ऐसे, अगर आपको ड्रॉप निकालनी है तो आपको ऐसे कैलकुलेट, तो 20 ड्रॉप पर मिनट आप 20 ड्रॉप पर मिनट आप पेशेंट को दोगे. ठीक है, अगर आवर्स में निकाल रहे हो तो सेम नंबर ऑफ आवर्स इतना इंटू 15 ड्रॉप पर मिनट एंड 20 ड्रॉप इंटू 60, तो 12 आवर्स आपका क्या होगा आंसर? तो 12 आवर्स में आपको देना है. अगर आपको क्या करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन को आपको कितना है 12 घंटे में आपको पेशेंट को देना है. ओके, अब आता है आपका फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड कन्वर्सेशन. जैसे आपने देखा होगा फीवर लेते हैं हम, सेल्सियस में भी लेते हैं और फ़ारेनहाइट में भी लेते हैं. अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करोगे आप? फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9. ओके, तो आपको ये वाला फार्मूला पुट करना है. और अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो क्या करोगे? सेल्सियस इंटू 9/5 यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा +32. ओके, आपका एग्ज़ाम में भी आता है. तो आपको कैसे चेंज करना है फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड कन्वर्जन्स को, लाइक फ्रॉम दिस फॉर्मूला. Okay, there are some reference information conversation factors and equivalent. 1 cc equal to 1 ml, 1 gram equal to 1000 mg, and the 1 mg equals to 1000 mg microgram. Okay, and 1 OG is the 30 cc, and the 1 teaspoon is the 5 ml, and 1 tablespoon is the 15 ml. 1 kg equals to 2.2 lbs. Okay, so these are some reference information. ओके, देयर आर सम एग्जाम्पल टू मिलीग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करोगे आप. ठीक है, डिवाइडेड द नंबर बाय 1000 टू 50 mg इक्वल्स टू जितना भी आपका क्या आ जाएगा. एंड मूव द डेसिमल पॉइंट 3 places टू द लेफ्ट. ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन. थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लास.